Yes, plus one students, welcome to our physics class. Students, till our previous video, we were discussing about some methods to measure the distances. Long distances measurement के हमने कुछ methods किए थे. For example, कुछ units किए थे discuss हमने astronomical unit, light year, parallactic second, etc. And some methods we have discussed, triangulation method to find the height of an inaccessible object, accessible object. These methods we have discussed. Reflection method also we have discussed to find the height of an object, to find the depth of an object, radar, sonar, like this. So today we are going to discuss a new method to find the distance of astronomical objects. This method is called as parallax method. What is parallax method? This method is used to find the distances of astronomical objects. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स इसमें कि व्हाट डू वी मीन बाय पैरालेक्स. पैरालेक्स क्या है? पैरालेक्स स्टूडेंट्स एक एरर है. एरर क्या है? जैसे सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्ज़र्व करना है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेज़र करना है फ्रॉम एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जांपल, दिस पॉइंट इज़ 1 एंड दिस पॉइंट इज़ 2. And we have to measure the position of this object O from position 1 and 2. Position of the object is fixed. अब क्या है, ये हमारी लेफ्ट आई है, ये हमारी राइट आई है. सपोज हमने अपनी 2 आईज के विद रिस्पेक्ट टू इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है. तो फर्स्ट क्लोजिंग आर लेफ्ट आई with the right eye we will observe the position of this object. Suppose हमारे हाथ में ये पेन है, अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके हम राइट आई से इस पेन की पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे. नाउ सिमिलरली by closing the right eye we will observe the position of this pen with our left eye. What do we observe? What will be the conclusion? कि position of the pen is slightly changed. लेफ़्ट के विद रिस्पेक्ट टू और राइट. लेफ़्ट के विद रिस्पेक्ट टू ये हमें थोड़ा सा राइट पॉइंट पे दिखता है, राइट आई के विद रिस्पेक्ट टू ये हमें थोड़ा सा लेफ़्ट में दिखता है ना. सो दिस इज़ द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. हमारी आइज़ में जो गैप है, लिटिल बिट जो गैप है, दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस आया, यानी कि एक एरर आया. इस एरर को क्या बोलते हैं? पैरालेक्स एरर. जो लेफ़्ट और राइट आई की पोजीशंस हमने ली थी, मीन्स जो 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिया था, इनके बीच में जो गैप होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज बेसिस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल b. दिस डिस्टेंस, position of the object with respect to this point, or we can say this point, this distance we have to calculate using parallax method. Okay, so first of all we will define what do we mean by parallax. Parallax क्या है? Parallax is the name given to change in position of an object with respect to background when the object is seen from 2 different positions. The change in position of an object with respect to 2 different points of observation is called as parallax. Okay, now what is basis? तो basis क्या है? The difference between 2 points of observation. डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेफ़्ट और राइट आई क्या थी? 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, तो इनके बीच में जो गैप है, दिस इज़ कॉल्ड एज बेसिस. नेक्स्ट इज पैरालेक्स एंगल. पैरालेक्स एंगल क्या होता है? एंगल मेड बाय दिस ऑब्जेक्ट with respect to 2 different positions of observation. Angle made by object with respect to 2 points of observation is called as parallax angle and this is denoted by theta. पैरालेक्स एंगल हमें पता है जैसे कि क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये बेसिस को आर्क सपोज करके एक सर्कल ड्रॉ करें लाइक दिस, देन दिस विल बी रेडियस एंड दिस विल बी आर्क. तो एंगल विल बिकम b by s.
angle will become b by s and s will become b by theta. So like this, s यानी कि distance of this object can be easily calculated using value of b and the value of theta. Okay, so like this parallax method can be used to find the distance of an astronomical object. अगर हमें basis पता है, अगर हमें ये angle known है, then this distance can be easily calculated. Okay students, this was all about parallax method क्या है. Now we will discuss how it is helpful to measure the distance of astronomical object. So now we will discuss पैरालैक्स मेथड, हाउ इट इज़ यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार्स. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैरालैक्स मेथड है दैट इज़ हेल्पफुल टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस ओनली दैट ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार बट लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस. जिसकी अर्थ से जो डिस्टेंस है दैट इज़ लेस देन 100 लाइट ईयर्स. 1 लाइट ईयर का वैल्यू हमें नॉन है. ये वैल्यूज़ आई होप आप सब ने लर्न कर ली होंगी. जो 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे, तीनों यूनिट्स का वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए. तो 100 लाइट ईयर्स अवे तक के ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस मेज़र करने के लिए वी कैन यूज़ पैरालैक्स मेथड. ओके, तो सपोज़ जैसे हमारे पास दिस इज़ अ नियर बाय स्टार. अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इस नियर बाय स्टार का डिस्टेंस हमने अर्थ से मेज़र करना है, अर्थ से हमने मेज़र करना है. ओके, एंड वी नो दैट एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कोई भी है, चाहे वो नियर बाय स्टार, जैसे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस क्या है, नियर बाय स्टार है. बट वो कितना भी नियर बाय हो, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अर्थ, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है. एंड बाय विच फॉर्मूला वी विल फाइंड दिस डिस्टेंस, वी विल यूज़ बाय पैरालैक्स मेथड. बाय पैरालैक्स मेथड फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या था, b अपॉन थीटा. B इज़ बेसिस, थीटा इज़ द एंगल, पैरालैक्स एंगल. अब बेसिस हमने क्या डिस्कस किया था कि पैरालैक्स मेथड के अंदर जो बेसिस था वो लेफ़्ट और राइट आई, 2 आईज़ के बीच का गैप लिया था. बट इफ़ वी डिस्कस अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, देन दिस डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज, basis will be very small. If basis is very small, if basis is very small and angle will be very large, sorry, if basis is very small, then to find the value of this distance, this angle will become too small. S is large, तो अगर डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा तभी ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो पाएगा. एंड फॉर द वेरी स्मॉल एंगल इट विल बी टफ टू मेज़र इट. ओके, इसलिए हमें क्या चाहिए कि इस एस को मेज़र करने के लिए हमें ये बी थोड़ा सा लार्ज लेना पड़ता है ताकि ये डिस्टेंस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकें. तो बेसिस तो हमारा 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है. वी कैन चूज़ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. ज़रूरी नहीं है कि हमें लेफ़्ट और राइट आई के बीच का ही गैप लेना है. हम अर्थ पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं जहाँ से हमने उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी कैन चूज़ एनी 2 पोजीशंस ऑन द अर्थ, any 2 positions on the earth, E1 and E2, which are equidistant from the nearby star, like this S. Now this S distance we have to find out. Now E1 E2 is not too small, it is some finite value. Okay, now this angle is theta. अब स्टूडेंट्स देखो, हमें पैरालैक्स मेथड को यूज़ करना है. बाय पैरालैक्स मेथड एस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला बी बाय थीटा. बी हमें नॉन है, बी इज़ नॉन, बी इज़ इक्वल टू E1 E2 एंड दिस थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल मेड बाय दिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट. अब स्टूडेंट्स देखिए कि क्या ये एंगल हम ऊपर जाकर मेज़र कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ अर्थ ओनली? नो, इट विल बी टफ टू मेज़र इट अगेन. ओके, तो हम क्या करते हैं इस एंगल की मेज़रमेंट के लिए, वी चूज़ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ. इन 2 पोजीशन से ही हम एक फार अवे स्टार सपोज करते हैं.
हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स कि जो वेरी फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ स्टार्स का ऑब्जर्वेशन किया होगा स्काई में कभी, कि कुछ स्टार्स जो हैं वो हमेशा हमें सेम पोजीशन पर दिखाई देते हैं। कहीं से भी देखें, कभी भी देखें, दे अपीयर, दे लुक एट द सेम पोजीशंस। तो वो क्यों अपीयर होते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस एंड द चेंज इन देयर पोजीशन इज़ नेग्लिजिबल, जो हमें अपीयर नहीं हो पाता, एंड दे अपीयर टू अस एट द सेम पोजीशन ऑलवेज। ओके, तो चाहे हम उस फार अवे स्टार को अर्थ की इस पोजीशन से देख लेते हैं, चाहे हम उस फार अवे स्टार को अर्थ की इस पोजीशन से देख लेते हैं, दे विल लुक ऑलवेज एट द सेम पोजीशन। दैट मीन्स अगर वो यहाँ से स्ट्रेट दिखाई दे रहा है तो यहाँ से भी वो स्ट्रेट ही अपीयर होगा। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट फार अवे स्टार। नाउ अब अर्थ की इस पोजीशन से हम ये वाला एंगल मेजर कर सकते हैं। अर्थ के पॉइंट से ही मेजर करना है, इजीली इट कैन बी मेजर्ड। सिमिलरली अर्थ के इस पोजीशन से हम ये वाला एंगल मेजर कर सकते हैं, θ2, θ1 एंड θ2 आर मेजर्ड। नाउ दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, क्योंकि ये वाला एंगल θ1 बन गया यूजिंग अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली दिस एंगल बिकम्स θ2 एंड नाउ टोटल थीटा बिकम्स इक्वल टू θ1 प्लस θ2 विच इज इजीली मेजरेबल। आर यू गेटिंग? E1 E2 हमें पहले ही नॉन हो गया, थीटा थोड़ा सा मुश्किल था मेजर कर पाना। नाउ थीटा इज ऑल्सो मेजर्ड इन बाय द सम ऑफ θ1 प्लस θ2, सो टोटल डिस्टेंस नाउ दिस कैन बी इजीली मेजर्ड। आर यू गेटिंग? ओके, नाउ वी विल राइट हियर some theoretical explanation about this topic, that see here, as astronomical distances are too large, parallax angle is too small to be measured. Hence, instead of taking distance between two eyes as the basis, we may broaden the base suitably. We may broaden the base suitably. Clear? Now parallax method is used to find the distances which are less than 100 light years away. ये बात हमने क्लियर कर दी। Now ये देखेंगे बात हम, the diameter AB यानी कि जो हमने E1 E2 दो पॉइंट्स लिए हैं of earth orbit around the sun is chosen as baseline. N is nearby star whose distance from earth is to be measured. F is far off star. F is far off star, ये आपको थ्योरी में लिखना है। F is far off star whose direction is taken practically the same at all positions of earth. Because it is far off star, so its position will remain same from the all positions of the earth. Okay, now angle FAN, angle FE1N, हमने E1 लिया है, FE1N is equal to θ1 and similarly FE2N is equal to θ2 and angle E1N E2 is equal to theta. So FE1N is equal to θ1, FE2N is equal to θ2, and so this theta becomes E1N E2 is equal to θ1 plus θ2, and hence the distance S will be equal to E1 E2 upon थीटा था तो थीटा को रिप्लेस कर दिया बाय θ1 प्लस θ2। E1 E2 इज़ नॉन टू अस क्योंकि अर्थ पे ही दो पॉइंट्स हमने चूज़ किए हैं, एंड θ1 प्लस θ2 इज़ ऑल्सो नॉन टू अस क्योंकि θ1 θ2 इंडिविजुअली हमें नॉन है। सो डिस्टेंस S कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड। हैंस द डिस्टेंस ऑफ दिस फार ऑफ स्टार इज easily calculated. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, ये जो E1 E2 है ये कुछ बुक्स में इसका वैल्यू पुट किया गया है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
जैसे इस बुक में भी हमारा पुट किया गया है AB इज़ इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्यों लिया गया है? क्योंकि जो हमने अर्थ की दो पोजीशंस ली हैं E1 एंड E2, ये क्या है, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब सपोज़ बुक वाले ने ये ले लिया कि E1 E2 क्या है, अर्थ की पोजीशंस हैं सन के अराउंड। अब हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड अपना एक रेवोल्यूशन लेती है इन 1 ईयर, है ना। तो अर्थ की ये जो पोजीशन है 6 मंथ बिफोर इट इज़ हेयर, देन आफ्टर 6 मंथ इट विल कम हेयर। अर्थ की दो पोजीशंस हैं, अराउंड द सन है, ड्यूरिंग इट्स 1 रेवोल्यूशन है। सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है दैट वी नो दिस इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो टोटल E1 E2 डिस्टेंस जो है, टोटल बेसिस जो है, ये हमारा क्या बन जाता है, इट विल बी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू हमें नॉन है, इतना होता है, तो टोटल E1 E2 का वैल्यू इतना आ जाएगा। θ1 θ2 इज ऑल्सो नॉन टू अस। सो टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियर बाय स्टार can be easily measured. Okay students, so this was all about the parallax method. Hope you have understood it. Practice it, revise it completely and make your notes. Okay, thank you.